Okay, so good evening, everyone. This is Arpit Tripathi, and I'm going to start up the session. Just give me 1 minute for that. I hope I'm clearly visible to you all. Just starting the presentation part. Yes. Show me a thumbs up if you can see the screen. Can you see the screen, everyone? Yes. Okay. So, very good evening, everyone. I'm going to talk about counseling approaches for teachers, and it has been a part of my area of interest as well. That being a psychologist, I always see a lot of teachers having very good counseling skills, but they are not able to use it when it comes to their professional domain. लाइक एक टीचर बहुत तरीके से बच्चों से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं. दे हेल्प देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. But then also it is somewhere that when we talk about counseling approaches, this is something where a teacher actually needs some sort of trainings. Like किस बात को कितना सीरियसली लेना है, किस बात को किस लेवल के साथ शेयर करना है, what is the importance of sharing, why to share, how to share, when to share. So all this what, why, where, when, and how, these will be discussed in this session. So why to talk about counseling approaches for teachers? So before I go to that, I have a very first question from you all, and the question is, what do you understand by counseling? Because counseling is something for which I see a lot of people using a lot of thoughts, their ways to solve their problems and all. But I generally see people somewhere lacks in understanding the exact meaning of counseling. So if you can write down in the chat box so that I can read it for you all, what do you mean by counseling? The term, when you listen the term counseling, what comes to your mind first? What do you mean by counseling? I'm giving you 1 minute. Just think and write. It means help children to overcome problems. Okay. To guide. Okay. To guide. Counseling advice without judging the other person. Okay. To get personal touch. Counseling means knowing the needs of the student. Okay. Motivate. Showing correct path. To brief, to care, to guide, convincing, motivation, and a lot of things. Great, great, great. Thank you. Thank you for writing. Guide, clear, and clear the doubt, motivate, guide, yes. Developmental health. Okay. Okay. Understand and encourage. Nice. Well tried. Well tried. And the majority of you are, of course, writing the very good, core of the counseling, this thing. Now, let us try to understand. See, the basic thing which I would like to request you is that you are listening to a psychologist. Okay. So try to add on the things which I am saying to your knowledge so that you can become a better teacher counselor for a child. Because a child is generally not sent to the counselor in schools. It is somewhere very common that a child suffers with the problem the teacher sees, and many a times when the teacher wants to really help the child, there are situations when the teacher exactly cannot, exactly understand how to approach, what to do. So all these things I'll be covering in this uh, like uh, session. And let us talk a little about what is counseling. So see, काउंसलिंग इज नॉट बिकमिंग अ मसीहा ऑफ अ पर्सन. लाइक हमने बिल्कुल एकदम मसीहा बन गए किसी बच्चे के लिए. हमने तो उसको कोई फेथफुल सजेशन दे दिया, उसको थोड़ा मोटिवेट कर दिया. अब तो हम बिल्कुल भगवान बन गए उस बच्चे के लिए कि वो बच्चा बिल्कुल हमको एकदम पूजा करना शुरू कर दे, हमें वो कोई बहुत बड़ा जो है देवदूत समझ ले. काउंसलिंग इज नॉट दैट. मेनी टाइम्स जब हम टीचर और काउंसलर का डिफरेंस की बात करते हैं,
सो पीपल जनरली थिंक कि काउंसलर और टीचर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं. देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस इन अ टीचर एंड अ काउंसलर. इज द टीचर्स रोल इज टू टीच the basics of life skills, the basics of their core potentials. But the counselor's job is to guide and help the person to help themselves to become better. यानी आप सब्जेक्ट यदि पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है और आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और बच्चा सीखेगा समझेगा. लेकिन काउंसलर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे के अंदर ये इंसाइट डेवलप करे, बच्चे के अंदर इस लेवल की हेल्प प्रोवाइड करे जिससे कि बच्चा खुद ही डिसाइड कर पाए व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज बैड फॉर मी. So counseling is to somewhere psycho age educate someone to help them to better help themselves better, right? So we don't become a masiha or a sort of any special person when we talk about counseling. That is not counseling. Advising is not counseling. Preaching is not counseling. Then what is counseling? Because many times people say, सर सजेशन नहीं देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं, तो आप कह रहे हैं काउंसलिंग में एडवाइस नहीं देना है, काउंसलिंग में उसको सजेशंस नहीं देने हैं, तो हम काउंसलिंग करेंगे क्या? This is a very common question which I always encounter, and I have to answer this, that counseling is to help the person by listening well. Now हम लोग को एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सबको लगता है हम बहुत अच्छे लिसनर हैं. सो हम यदि एक अच्छे लिसनर हैं तो हमें कुछ चीजें चेक कर लेनी चाहिए, जैसे वी डू नॉट इंटरप्ट व्हेन समबडी इज स्पीकिंग. When somebody is speaking, we do not mentally argue with the person. When somebody is speaking, we are not parallelly creating questions in mind. If we are not doing that, good, you have core counseling skills. बट जब आप किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाले की बात शुरू हुई कि आपका अगला क्वेश्चन धड़ाम से गिरा, सामने वाले ने अपनी बात कहनी शुरू की कि आपने दिमाग में एकदम उसको लगातार आर्गुमेंट करना, डिस्कशन करना, ऐसी चीजें बोलना शुरू कर दिया, सो आपको काउंसलिंग स्किल सीखने में थोड़ी दिक्कत आएगी. Because counseling starts with a good listening skills. So even a deaf and dumb person can listen well. Now you can say, sir, listening is not what you listen by your ears only. Listening means what you listen by the complete conversation, what the body is doing, how the expressions are there. And we all know किसी भी communication में 80% रोल जो है वो इस चीज का होता है कि पर्सन किस लैंग्वेज में बोल रहा है. सॉरी, 80% रोल जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज का होता है और 20% रोल उसके वर्ड्स और सजेशंस का होता है. मे बी मुझे आपको तमिल नहीं आती, मे बी मुझे आपको थाई लैंग्वेज या कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन यदि कोई पर्सन एग्रेसिव है तो हम उसको देख करके उसके हाव भाव से ये समझ जाएंगे कि दिस पर्सन इज समवेयर नॉट इनटू दी दैट इमोशनल एक्सपेक्ट व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर. सो इट इज समथिंग जहां पे हमको काउंसलिंग समझने की जरूरत है. सो काउंसलिंग इज एन स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन टू पीपल. Sorry, there's a mistake, that is TWO2. So counseling एक structured है, interactive process है. So हमारे दिमाग में कुछ myths हैं कि जैसे यदि interactive है मतलब कि हमें बोलना है, but बोलना कब है? जब actually बोलने की जरूरत हो. I will explain you the further techniques also as well in the future. Its key components are structured. Structured means बात कहीं से भी उठा के कहीं भी किसी भी दिशा में नहीं चली जाएगी. बात का कोई सेंस होगा, बात का कोई लॉजिक होगा और उस बात का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा. हम बात तो घर पे भी करते हैं, हम बात तो अपने दोस्तों पे भी करते हैं, तो क्या वो काउंसलिंग है? नहीं, वो काउंसलिंग नहीं है जब तक कि हम किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पकड़ करके उस प्रॉब्लम की डिटेल्स में नहीं जाते हैं. राइट? Number 2, its key components are empathy, unconditional positive regard. Empathy means paranubhuti, yani to feel the same pain as the person is feeling. So somebody or someone may of you can say, सर तो यदि किसी का पैर कटा है तो क्या जब तक हम अपना पैर काटेंगे नहीं हमें फील नहीं होगा?
There are a few people who sometimes say. So I just answer this with a, like, I am very humorous with this thing. I keep creating humors there. I'm just saying one thing. When you are talking about empathy, empathy simply means feeling the discomfort of the person. Very common definition, putting yourself into someone else's shoe. Let me give you an example. For example, if somebody told that I'm not feeling well today, I'm having fever, cough, and cold. Now I said, okay, take care of yourself, go take medicines, right? Rest well. If I have said these things, this is sympathy. I repeat, somebody said that I'm not feeling well, and I said, go take medicine, take care of yourself, sleep well, rest well. This is sympathy. But when we talk about empathy, empathy means I will make sure that this person gets the medicine, this person eats the medicine in front of me, this person rest well, and I assure the complete, help of that person. That is empathy, राइट? हमारा कोई पड़ोसी बीमार है और हमने उसको कहा दवा खा लीजिए, ध्यान रखिए, ये सिंपथी है. बट अपना खुद का बच्चा बीमार है, तो बहुत परेशान हैं, देख रहे हैं, उसको दवा खिला रहे हैं, पट्टी कर रहे, दैट इज एम्पथी. So the difference of empathy and sympathy we have to understand. When we talk about unconditional positive regard, it simply means complete acceptance with genuineness. Now genuineness means यदि हम कोई सीनियर टीचर हैं, या हम कोई कोई भी टीचर हैं, मे बी टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, पीआरटी हैं, बट हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी अपब्रिंगिंग और हमारा बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है कि हमको कोई भी पर्सन जो दिखता है, हम उसके बारे में कुछ ना कुछ जजमेंट्स लगातार फॉर्म करने की हैबिट में है, और हम एक्सेप्ट नहीं करते उस पर्सन को. कहीं ना कहीं उस पर्सन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है अपनी बात को हमें प्रॉपरली कम्युनिकेट करने में. तो देयर इज सम इश्यू विद माई अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. यानी आई एम नॉट जेन्युइन एंड आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द पर्सन कंप्लीटली एज द पर्सन इज. So that is very important to understand. When we judge a person, it is understood. छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, छोटे बच्चों की लैंग्वेज डेवलप नहीं होती है, लेकिन जब वो अपने माता पिता को झगड़ा करते देखते हैं, सो यू नो दे हाइड देमसेल्व्स, दे क्लोज देयर आईज, दे बिहेव लाइक कि वो डर रहे हैं. व्हाई? उन्हें तो नहीं समझ में आ रहा माता पिता एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, कौन सी गालियां दे रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं. But it is something that we are born with emotions, and to understand the intensity of the emotions. That's why language is not a barrier when there is a love between. Understood? So, when we talk about unconditional positive regard, it simply means complete acceptance with genuineness. ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ना, सबसे बड़ा कंसर्न जो टीचर्स फ्रेटर्निटी में आता है, वो ये आता है कि हम बच्चे का ट्रस्ट जीत तो लेते हैं, लेकिन बहुत दिन तक संभाल के नहीं रख पाते. जब वो अपनी निजी जिंदगी की कोई बात बताता है, जब वो अपने मे बी अपने किसी फ्रेंड्स के बारे में कोई डिस्कशन करता है, या कहीं से भी वो रिलेशनशिप या ऐसा कोई कंसर्न डिस्कस कर देता है, या मम्मी पापा से रिलेटेड कोई चीज बताता है, घर की कोई व्यक्तिगत चीज एक्सप्लेन करता है, आई हैव सीन मेनी टाइम्स टीचर्स को ये लगता है कि दिस इज समथिंग व्हिच आई एम वेरी ट्रस्टवर्दी, बच्चे ने मुझे बताया है, and to gain some sort of popularity and thing, they rush to the staff room or the evening coaching thing, and they tell it to their peers, अपने friends को, अपने like fellow colleagues को, they tell them that the things are like this, उस बच्चे की जिंदगी में ये प्रॉब्लम, मैंने तो समझाया, परेशान मत हो, समथिंग, just to show कि मुझे बहुत पता है. I am sorry to say, but teachers, that's not counseling. Teachers, that is somewhere you are actually closing the last door of that child, where the child came for a session from you, and you actually did not help the child. So किसी ने मुझे अपनी कोई गुप्त बात बताई, किसी ने मुझे अपनी कोई पर्सनल चीज बताई, इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं निकलता है कि मुझे उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा दर्जा मिल गया, कि अब मुझे ये पावर मिल गई है कि विथ whom so ever whatever I want I can go and I can share. No, I am sorry, you cannot. If you do so, then you are not a counselor, you are not practicing counseling skills. Counseling counselor बनने के लिए you need a master's and a diploma in guidance and counseling, but counseling is skills that you as a teacher can practice. I don't want you to be a psychologist,
but I request you to be at least this much mindful so that you keep the confidentiality part with the child and of the child, of course. Number two, confidentiality. Confidentiality simply means to keep the conversation between two people only. Like, if I have said something to you and you shared a few things with me, I am the counselor, I am keeping it with myself. Now, हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब तक कि कोई तीन परिस्थितियां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब तक कि ये कोई तीन परिस्थितियां ना हो, यू आर नॉट सपोज टू ब्रेक द कॉन्फिडेंशियलिटी, स्पेशली respecting the privacy of the child. So what you can do in that, number one is, when the child is at risk, जब बच्चे की जिंदगी पे कोई खतरा है, हम कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करेंगे. बच्चा अपने आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है या प्लानिंग कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, हम कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करेंगे. नंबर टू, जब भी हमें ये रियलाइज हो रहा है कि बच्चे से किसी और को खतरा है, बच्चा किसी और की लाइफ को हार्म कर सकता है, वी विल ब्रेक द कॉन्फिडेंशियलिटी. और जब हमें ये लग रहा है कि किसी और से बच्चे की लाइफ को खतरा है, देन ऑल्सो वी ब्रेक द कॉन्फिडेंशियलिटी. बट उसके अलावा आप सोच करके देखिए, कोई भी इशू हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, बच्चे का, एंड ऑफ कोर्स सेक्सुअल अब्यूज वाली चीज जो है वो तो हम ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करेंगे. बट घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा ना हो, कोई ऐसी मेजर बड़ी प्रॉब्लम हो, इन ऑल दो सिचुएशंस आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू बी दिस मच माइंडफुल कि आप बच्चे की चीजों को यदि पब्लिकली बता दे रहे हैं, दिस इज समथिंग जहां से वो बच्चा आप में भी ट्रस्ट लूज करेगा. एंड एक्चुअली यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट फ्रेटर्निटी ऑफ योर एज. तो उसका टीचर्स में और आपकी एज के लोगों से एक ट्रस्ट हट जाएगा. तो हो सकता है आप उसके पापा की एज के हो सकता है आप उसकी मम्मा की एज के हो, भाई की एज के हो, वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट को अपने से बड़ों के लोगों के ऊपर भूल जाएगा. सो गॉसिपिंग, आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट to please avoid gossiping regarding a child's privacy. It's not counseling. So confidentiality means keeping the discussion between two people. But since you are a teacher counselor, if you have a psychologist or a counselor in your school, you should tell this to your counselor that this thing discussion happened. और एक काउंसलर के सामने कॉन्फिडेंशियलिटी, बच्चे की लाइफ की कोई भी चीज बताना इज नॉट रॉन्ग बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द पर्सन. ओके. काउंसलिंग एक्सपेक्टेशंस यानी बच्चे की एक्सपेक्टेशन नीड टू बी डिस्कस्ड. अब कभी कभी कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो आपसे कह देते हैं मैम आप समझा दीजिए, सर आप समझा दीजिए, वो ना बिल्कुल समझ जाएगा, उसको आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, आप कह देंगे तो बिल्कुल सही होगा, सर आप कह देंगे तो ऐसा हो जाएगा. आई एक्सेप्ट, इट्स गुड, बट यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप कोई ऐसा फेक प्रॉमिस ना कर दें पेरेंट्स से जिससे कि कल को आप ही के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए. सो यू हैव टू बी माइंडफुल इनफ कि कोई भी, चाहे वो बच्चे की एक्सपेक्टेशन आपसे हो, चाहे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन आपसे हो, इन दोनों में आपको हमेशा ये चेक करना है व्हाट इज बेटर टू promised. Goal of the session is mutually decided by the counselor and the child, of course. So you have to somewhere understand that when we talk about teacher counseling, teachers counseling is giving a very nice listening space to the child. That is the very first priority of the thing. Now let us talk about a little few myths, because बड़े बड़े लोग जो हैं उनके भी दिमाग में यही थॉट्स रहता है कि काउंसलिंग जो है वो क्या है क्या नहीं है, and people think generally like this. So I am just addressing it here. There are few myths and facts of the counseling. The very first is counseling is only for people with serious health issues or for crazy people. No, it is not. Counseling is for mental wellness. Psychotherapy and psychiatrists are for mental illness. I repeat, counseling is for mental wellness, and psychiatrist and psychotherapy is for mental illness. So we have to understand, जब हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं यानी हम मेंटल वेलनेस की बात कर रहे हैं, और जब हम साइकोथेरेपी की बात कर रहे हैं या साइकाइट्रिस्ट की बात कर रहे हैं तो हम मेंटल इलनेस की बात कर रहे हैं. स्किजोफ्रेनिया हुआ, डिप्रेशन हुआ, और क्लिनिकल सिचुएशंस हुई, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हुआ, ये साइकोथेरेपी का पार्ट है, ये साइकाइट्रिस्ट की के डोमेन का रेंज है. बट
इमोशनल प्रॉब्लम हुआ, अपनी बात को बता पाने में दिक्कत हुआ, मम्मी पापा से कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज हुए, ये सब इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है ये काउंसलिंग का पार्ट है। तो हम लोग लाइफ में यदि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम अपनी बात को किसी से खुल के नहीं बता पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा स्पेस मिले जहां पे हम अपनी बात किसी पर्सन को बता पाए, सो दैट इज समथिंग काउंसलिंग एंड इट इज फॉर इट इंडिकेट्स कि आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, यू वांट टू टेक चार्ज फॉर दिस, सो दैट्स समवेयर गुड, राइट? नेक्स्ट इज only weak people who cannot cope with issues on their own should seek counseling. No, strong people seek counseling more than the weak people. Weak people generally don't come, उनको ढकेल के भेजना पड़ता है बात करने के लिए. But when we talk about strong people, every celebrity, every people whom you see somewhere, in their life being so successful, they have been into some situations in their life जहां पे उनको किसी ना किसी तरीके के इमोशनल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा का सामना करना पड़ा है, बट दे टॉक्ड अबाउट इट. सो टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम actually helps you to heal yourself better. So that is something very important. Any person in the world ever face problem talks about it. आप बहुत सिंपल एग्जांपल हम लोग के लिटरेचर्स के ले लीजिए. राजा दशरथ जब बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए कि कोई संतान नहीं है, तो वो जब वशिष्ठ मुनि के पास गए और उन्होंने कहा मेरे संतान नहीं है, मैं लग रहा है ऐसे ही मर जाऊंगा. He was worried. And when he was worried, what Vashishth ji said, he gave him enough listening space. अच्छे से सुना उनको और उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, आई विल मेक श्योर कि आपकी क्या हेल्प की जा सकती है. आप श्रृंगी ऋषि से बात करिए और वो आपकी इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक लेके जाने की कोशिश करेंगे. तो जब तक राजा दशरथ उस बात को अपने तक रखे थे, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. जब उन्होंने किसी एक्सपर्ट से बात की, किसी ऐसे पर्सन से बात की जिसको नॉलेज थी उस फील्ड के बारे में, उसने बेसिक काउंसलिंग प्रोवाइड कराई और उसने उनकी प्रॉब्लम से उनको बाहर निकलने में हेल्प किया. दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंसलिंग वाज. सो इट्स वेरी सिंपल. व्हेन अर्जुन वाज नॉट इन अ फेज कि वो ये डिसाइड कर पाए कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, एक तरफ से उसकी पत्नी का चीरहरण किया गया है और दूसरी तरफ से उनको उसी से लड़ाई करनी है, तो उसकी उस समय के उस गिल्ट से बाहर निकलने में कृष्ण जी ने जो हेल्प की, दैट इज ऑल्सो काउंसलिंग. सो काउंसलिंग इज समथिंग विच इज एवरीवेयर. बट होता है ना, चीजें जब मॉडर्न लैंग्वेज के साथ आती हैं तो वी मेनी टाइम्स फील कंफ्यूज कि करना क्या है. सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट काउंसलिंग इज फॉर ऑल टाइप ऑफ पीपल who are emotionally facing some issues, who are not keeping emotionally well. It is for them only. A stranger can't possibly help me, they don't even know me. Now the best option is चर्च में कैथारसिस बॉक्स होते हैं जहाँ पे जा करके 3 मिनट बाद ऑन होगा. सो जहाँ पे जा करके लोग अपनी कैथारसिस करते हैं और एक लेफ्ट साइड से एक जो है प्रीस्ट बैठे होते हैं, वो जस्ट लिसन द थिंग्स जो पर्सन बोल रहा है. सो दैट इज समथिंग कि कोई स्ट्रेंजर के पास हम अपनी बात को जितने खुल के बता पाएंगे, शायद किसी नोन से वही बात डिस्कस करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है. So that is something that counseling helps even if you are a stranger. I have tried counseling before and it doesn't work. See, not all days are same and no storm lasts forever. So have to understand somewhere कि मैंने पहले ट्राई किया, बट एक ही समस्या के लिए हर इंसान का अलग अलग अप्रोच होता है. आई डोंट नो हमने जिस अप्रोच को ट्राई किया, was it really worth, was it really helpful or not, and what could be done. मे बी जो ऑब्जेक्टिव था, जो मेथड था, कई चीजें मिसिंग रह गई हो, किसी हेल्प की जरूरत तो ना हो पाई हो. सो काउंसलिंग यू कैन ट्राई विद समवन एल्स एज वेल. Counselors never say anything, they just listen and take notes. It is also a myth. Counselor speaks and counselor say something, but when it is really needed, they don't say anything. Counselors don't preach. Counselors are not that sort of people who are generally sitting on a chair and something and giving them orders and very nice, बहुत अच्छा, very good, जीवन में यह करो, जीवन में वह करो और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ. It is not like that. Counseling is not that. Whenever anyone comes to know that I am seeking counseling, and there is a lot of taboo beside it, many people makes fun of this something और बहुत बेइज्जती होगी. Yes, you have to understand, जब तक आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप खुद नहीं आएंगे, कोई आपकी इज्जत करे बेइज्जती करे, कोई खासा फर्क नहीं पड़ता.
When you love yourself, doesn't matter what other people say. But when you don't love yourself, whatever any next person will say, you will feel irritated with it. Another thing, there are also some more myths. Counselors can read people's mind. No, none of the counselor can read people's mind. Psychology is a subject which helps you. The counselors or the psychologists are the people who helps you to understand your emotional spectrum, who helps you to understand your troubles. And counseling or psychology is a subject which talks about mental processes and the behavior and its connection to that. Okay, so counselors or a psychologist can never read people's mind. On the basis of the response of the people, they pretend, they make some hypothesis कि ये हो सकता है. Another thing, a counselor can solve all your minds. No, it's practically not possible. I'm not there in your body, you're not there in my body. How can I? But yes, counseling is something when we assure that I cannot solve all your problem, but I promise I will not let you face them all alone. काउंसलिंग का सिंपल सा मतलब है, आप जिंदगी में ज्यादा मजबूत तब महसूस करते हैं जब आप अपने किसी भी स्टेप में जब आगे बढ़ रहे हैं और आपको लगता है लोग मेरा साथ देंगे. सो एक बच्चे को ये भरोसा दिलाना, किसी साथी को ये भरोसा दिलाना कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता या कर सकता हूं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इस समस्या को अकेले झेलने नहीं दूंगा. आई विल बी देयर विद यू. दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अफर्मेशन व्हिच अ चाइल्ड कैन फील कि यार एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम हम जीतेंगे हारेंगे जो भी हो, बट एटलीस्ट इस बंदे को इस बात से फर्क तो पड़ता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. काउंसलिंग टेक्स फॉर एवर, हमेशा चलता रहता है. इट इज ऑल्सो अ मिथ. काउंसलिंग नेवर टेक्स फॉर एवर. काउंसलिंग विल चेंज हु एम आई. Counseling will never change who you are. Counseling will help you to understand yourself better. Then you can make a change in yourself. Doesn't matter. Counseling is advice giving. It's a myth. Counseling is not giving advices. Counseling is not preaching. Counseling is helping you to, like to keep your emotions and thoughts in a way so that you yourself can sort it out and you can yourself can understand it what is exactly happening. Like ऊन के लाल पीले हरे नीले चार अलग अलग उलझे हुए बंडल्स आपके पास फेंक दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनको बताओ ये कैसे उलझे, कब उलझे, कहां से उलझे, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट. बट व्हेन आई से चलो साथ बैठते हैं और सुलझाने की कोशिश करते हैं और सुलझाते सुलझाते आई हैव हेल्प्ड यू इन अ वे दैट यू वर एबल टू टेक आउट ऑल दोस फोर बुल्स और आपने चार अलग अलग गोले बना लिए. तो आपको पता है कि कौन से वाले बुल से कितना कंट्रीब्यूशन था. दिस इज द सेम प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग. काउंसलिंग इज द लास्ट रिजॉर्ट. हमने पूजा पाठ ओझा भूत प्रेत न जाने क्या क्या सब ट्राई कर लिया, कुछ काम नहीं किया, चलो एक तो साइकोलॉजिस्ट से मिला देते हैं. आई एम सॉरी, in 90% cases I have seen when people are brought to me, but teachers believe counseling is not a last resort. It is the first resort. When you feel sad and you talk to your wife, if your wife listens very well, that is the first hand counseling which she gives you. Psychologists and psychiatrists both are same and both provides medication. No, counselor and psychologist, they do not provide medications. The psychiatrist is capable enough to provide medication, but when it is a mental illness, therapist can help only if they have experienced the same thing. Now, यदि मुझे some like a person asked me कि सर आप एक मेरे बच्चे की बात कर रहे हैं और आपका खुद का बच्चा कितने साल का है, आई इमीडिएटली आंसर कि हर वो डॉक्टर जो हार्ट का ऑपरेशन करता है जरूरी नहीं कि उसका खुद का भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, right? So you have to understand that these are things which are related to skills and skills can be practiced. So एक 20 30 25 40 साल का व्यक्ति भी किसी 60 65 70 साल के पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. So the thing is to help you to solve the problems. I'm not talking about solving the problems. Now what is the aim and objective of the counseling? So counseling's aim at helping the clients understand and accept themselves. So the very first basic thing which we have to remember is promoting insight. Insight का मतलब क्या होता है?
लाइक कोई चोरी करता है, उसको जेल में बंद कर दिया गया, वहां पे उसने चार और तरीके की टेक्निक्स चार अलग चोरों से मिलकर के सीख ली, और अब वो एक प्रोफेशनल स्मार्ट चोर हो गया है। पिछली बार वो पहली चोरी में पकड़ा गया था, इस बार चार चोरी के बाद पकड़ा जाएगा, फिर और सीखेगा और पकड़ा जाएगा। लेकिन यदि उस बंदे को, उस पर्सन को खुद ये रियलाइज हो जाए कि मैं गलत कर रहा हूं, ये सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो रत्नाकर से वाल्मीकि बनाने वाली प्रोसेस है। एंड दैट्स द रोल ऑफ द काउंसलिंग इज इंफॉर्मेशन गिविंग। जब तक आप किसी को ये नहीं बताते व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ दिस थिंग, the person is not capable enough, because maybe the person is just looking into a different spectrum of the thing. So you have to be very mindful in terms of, as a teacher, the techniques which I'm going to tell you have to use it for giving information to the students, bridging the gaps, informants and the client. Of course, these are technical terms which a psychologist use. I'm not making you psychologist in a way, I'm just helping you to be a good listener. So what are the things which you have to take care of, like bridging the gap? When a child is saying something, has faced something else, was something else, wanted to be something else, and you see that will become something else. In all these situations, bridging the gaps with the help, these are your strength, these are your weaknesses, these are the threats, these are the opportunities, these are your good things, these are your not so good things, not so good things you can work upon. You can, so you know, when you help the person by themselves and they can see, Arey yaar, I'm good at this, I'm good in that, this weakness can be converted into such sort of a strength, this thing will help and this thing will bridge the gap. Conflict resolution, many a times, even if you're not feeling emotionally well, you will go to a class, people become smart with time that they do not carry that thing in their class, but many times it happens that if you shout on someone and you think that the person is shouting and the shouting could be because of any other reason, maybe some emotional disturbance, could be. So conflicts needs to be resolved. Conflicts needs to be resolved is that's why, like, because if you will not resolve the conflict, it will always bother you emotionally, it will always bother you in all possible aspects, whatever you think. So, conflict resolution is very important. Problem solving. Now, problem solving is an approach. Problem solving doesn't mean that you solve the problem. When you, as a teacher, tell the solution of a question, that thing that is needed. When it comes to life का problem, you must have seen वो parents जो बच्चों को बचपन से स्पून फीडिंग करा रहे होते हैं, हर चीज बच्चे को लाइफ में बच्चे से पहले कूद कूद करके उसको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आई विल से दिस एग्जाम्पल, जो भगवान बुद्ध के साथ जब वो सिद्धार्थ थे तो उनके पिता किया करते थे कि इसको किसी भी पेन का सामना न करने दो, इसको कुछ भी मत देखने दो, इसको इसको सूखे पत्ते उसके उठने से पहले उठवा दो, इसके बाहर निकलने से पहले सभी गुणों को हटवा दो, इसको मृत लोगों का सामना मत करने दो। वो जितने प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते थे, दैट वाज लॉर्ड बुद्धा, जिनकी ये पूर्व कर मतलब पूर्व संस्कार थे कि वो उन चीजों को देख के ट्रॉमेटाइज नहीं हुए। अदरवाइज एक बच्चे को आप इन सब चीजों से बाहर रखिए और वो एकाएक देखेगा तो उसको ट्रॉमा ही लगेगा, एंड उसका ट्रस्ट अपने पेरेंट्स से हट जाएगा कि भाई क्या मुझे बता रहे हो। So that is something which you have to understand, that when it comes to problem solving, you have to help the child to solve his or her problem by his or her own efforts. एक 30 साल के पर्सन के लिए 3 साल के बच्चे की भी बुद्धि के हिसाब से सोचना आसान है, बट एक 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के बच्चे का 30 साल के पर्सन की बुद्धि के हिसाब से सोचना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। So that is something where we have to understand that we as an adult become a better counselor when we help the child. Self awareness. We help जब हमें पता होता है हमारी लिमिट्स क्या हैं, जब हमें पता होता है हमारी पहुंच कहां तक है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। So in all those situations, the insight actually helps. Now the teacher counselor must, अब आपको क्या क्या चीजें करनी है। So listening. अब लिसनिंग का मतलब क्या है, तो लिसनिंग में क्या आता है, नॉट जजिंग। नॉट जजिंग मतलब अब वो त्रिपाठी है, गुप्ता है, यादव है, आनंद है, श्रीवास्तव है, डजंट मैटर, वो एक पर्सन है, वो लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, डजंट मैटर, वो एक पर्सन है।
जब आप किसी को उसके कास्ट, कल्चर, बैकग्राउंड, इन सब चीजों को किनारे करके सुनेंगे तो आप उस पर्सन को एक्चुअली वो रिस्पेक्ट दे रहे होंगे जो उसको जरूरत है, जिसके लिए वो परेशान है। नंबर 2, paying attention. Paying attention means showing that I am listening to you, making the person feel that I am interested in the conversation which you are saying, and but I'm interested because I want to help you. Okay, accept the client's feeling, yani accepting the feeling of the child, understanding the child's world and feelings, put you in the child's shoes. So it's all about empathy. You have to somewhere understand कि ये कितना टफ हो सकता है एक बच्चे के लिए, एक छोटे से बच्चे के लिए जिसने कभी डॉल्स नहीं छोड़ी, उसके लिए पेंसिल पकड़ करके क्लास में ए लिखना कितना टफ हो सकता है। हमने हजारों बार लिखा होगा, बट किसी जमाने में हमारे लिए भी बहुत टफ काम था। थिंक अबाउट द चाइल्ड। मेरे बात करने से ये ठीक हो गया, मेरी वजह से ठीक हो गया, मैंने इसके ऊपर काम किया इसलिए ये ठीक हो गया। इस तरीके का क्रेडिट पब्लिक फोरम में लेने से हो सकता है आपको एक टेम्परेरी रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिल जाए, बट आप बच्चे की नजरों में यदि रिस्पेक्ट पा गए, यदि आपने बच्चे की नजरों में खुद को रिस्पेक्टफुल बना लिया, so that is something will happen when you will listen, when you will not judge, when you will pay attention. When you will pay attention, when you will listen, when you will accept the feeling of the child, when you will think about the child, how it will help? It will help the child because the child can develop his or her thinking. उसको समझ में आएगा कि मेरा सही क्या है, मेरा गड़बड़ क्या है, मैं कहाँ पे सही कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ। और ये तभी आपने कई बार देखा होगा, जब आप बात करते हैं, बात करते करते टक से कोई सोल्यूशन दिमाग में आ जाता है। सो दैट इज समथिंग लाइक इट हेल्प्स यू टू डेवलप योर ओन थिंकिंग। Feel safe and respected. A 5-year child or a 50-year person, everybody wants to be listened. यही वजह होती है कि घर के रिटायर्ड बुजुर्गों के पास लोग क्यों नहीं बैठना चाहते, बिकॉज उनके पास इतनी सारी चीजें होती हैं बताने की, बट सुनने वाले का इंटरेस्ट नहीं है। एंड दैट मेक्स देम फील कि हमारी इज्जत क्या इसी सैलरी की वजह से थी, हमारी इज्जत क्या हमारे इन चीजों की वजह थी, वेयर वी हैव टू मेक देम रियलाइज कि नहीं, इट वाज नॉट लाइक दैट, बट यू आर नॉट cognitively changing yourself to share your experiences with the people because they are not into a phase like that. हेलो हेलो, टेलीग्राम से बोल रहा हूँ, ये जाने जाओ से सर आपके सिल्वर पैड। नहीं 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 चाहिए भैया। Am I audible? Yes. So feel safe and respected, know your care. Many a times the child will understand that you are actually caring. The child will feel that not being judged. अब किसी बच्चे ने कहा पापा हम तो बड़े होके डांसर बनना चाहते हैं। हाँ हाँ, अब तो तुम कुछ करने लायक बच्चे नहीं, तुम तो नाचने गाने का काम करो, तुम तो सिर्फ ये करो। और you as a teacher, you saw the child going into the co-curricular activities and you, the moment the child entered in the class and say नाचने गाने के अलावा तो कोई काम है नहीं, लड़के हो घर में कमाना है, ये करना है वो करना है। I'm telling you, if I talk about the professions 20 years back, and if I talk about the profession in the current society, our job is more at risk because people who have changed themselves with time, there are more than 400, 500 new professions where a child can explore his life. So the thing is that we have to, be somewhere mindful in terms of using the statements what we are using for the child. Just a second, I'm shifting my network. Actually, my Wi-Fi is showing somewhere it's not working. I'm shifting to the another Wi-Fi. Just give me 1 minute. Uh, Continuing with the same. So, it is very important that you somewhere provide the best possible help to the child, and that's really needed. Next,
The teacher counselor may ask questions. You may ask questions, but the question that you ask has to be respectful. जैसे आप पुलिस से लोग क्यों इन जनरली डरते हैं? I was taking up a session of the police people somewhere, and they said कि सर आपको पता है हमें कभी काउंसलिंग स्किल्स नहीं सिखाई जाती, हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि बात करना कैसे है। एंड आई वाज शॉक्ड। तो उन्होंने कहा कि यदि मेरे सामने एक 16 साल का बच्चा है या मेरे सामने एक 60 साल का पर्सन है, उन दोनों पर्सन को जब मैं देखूंगा और वो कहेंगे कि मान लीजिए ये कोई प्रॉब्लम मेरे साथ पिछले 3 महीने से, तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि 3 महीने पहले क्या कर रहे थे, पहली बार जब हुआ तो क्यों नहीं आए? सो this was something very new thing for me, where I realized, yeah, this is very important, that when you don't use the right set of words for talking to someone, when you don't ask the questions in the right way, answering is not a skill. Asking questions is a very nice skills that we all have to learn. Summarizing. Summarizing means whatever the person says, whatever the person says, you have to somewhere summarize it. That you said this, I understood this. Correct me if I have not understood you well. Ask the child to try new behavior in counseling session. Now, when you will do these things, when you will ask questions, what it will do on a child? It will help the child to develop his or her own thinking. When you will summarize, the child will be able to understand that he or she is understood. When you will ask the child to try new behavior in a counseling session, the child will release blocking emotions such as unexpressed. हम सबके सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा भरा है वो क्या है? वो वही है जो हम लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए. So that is something, when we express it, we feel released. लड़कियां मायके जा करके, आज से बहुत समय पहले ये चीज हुआ करती थी, अब लोग फोन पे बहुत कर लेते हैं, बट मायके जा करके लड़की को ऐसा कौन सा डिफरेंट बेनिफिट मिलता था? द बेस्ट चीज जो उसको मिलती थी वो लिसनिंग स्पेस. कोई उसकी प्रॉब्लम होते सॉल्व नहीं करता था, बट उसकी मम्मी, उसकी भाभी, उसके फादर, उसके ब्रदर, उसके सिबलिंग्स उसको सिर्फ ये रियलाइज कराते थे कि आई अंडरस्टैंड दैट तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है, और आई अंडरस्टैंड तुम कितनी खुश हो, आई अंडरस्टैंड तुम्हारी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है या क्या अच्छा नहीं चल रहा है. सो प्रोवाइडिंग द लिसनिंग स्पेस हेल्प्स यू अ लॉट. आपके प्रिंसिपल यदि आपको बुला करके किसी बात को बोल दें और उसके बाद आपका ओपिनियन सुनने के लिए रेडी हो, यू विल लाइक दैट. So that is something I have to be taken care of. So the teacher counselor should not, what you should not do, argue. पहले क्यों नहीं किया? किया, यदि नहीं किया तो क्या वजह थी? इस तरीके के क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है. When you will not argue with the child, it will help the child to be open up. And when you will argue with the child will become defensive. आपके हर क्वेश्चन से पहले 4 आंसर दिमाग में रेडी करेगा. ठीक है, कम बोलो, जाने दो, झूठ बोल दो, हट जाओ. When you will dwell on their own difficulties, the child will withdraw. And when you will solve the problem of the child will become dependent. And this is one of the very bad thing which adults really like, that I as a professional do not promote it. You have to be mindful कि यदि कोई आप पे डिपेंडेंट हो रहा है तो आपकी कोई बड़प्पन नहीं है. यदि कोई आप पे डिपेंडेंट हो रहा है तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. यदि आप उस पर्सन को इस लायक बना दें कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके और वो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बने, तो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग द चाइल्ड. बट when the child is becoming dependent on you, that is somewhere it is very risky. So you have to be very, very much mindful in terms of helping the child, not making the child dependent on yourself. Next is, yes, when you will give advice, what will happen?
It will also make the person dependent and hostile. The person will not be able to think by their own. करेंगे जो आपने कह दिया वो कोशिश करेंगे, ठीक बैठ गया तो साहब अगली बार आप ही सोल्यूशन दोगे, और जब कभी कोई गलती होगी तो जिम्मेदार भी आप ही होगे. सो दैट इज समथिंग जहां पे हम उसको कोई लाइफ स्किल नहीं सिखा रहे हैं. When you belittle the child's concern, जब आप बच्चे की बात को बहुत हल्के में ले लेते हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है whether the child will withdraw or the child will attack. एंड अवॉइड पेनफुल एरियाज. हम लोग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सीधे समस्या पे कूद जाना. जैसे ही आप किसी पर्सन को लिसनिंग स्पेस नहीं देते हैं और उसकी समस्या पे कूद जाते हैं, दैट पर्सन एक्चुअली स्टार्ट्स फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. सो व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो, व्हिच वी हैव टू रिमेंबर इज, नंबर 1, व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ चाइल्ड, मेक श्योर कि आप उससे ऐसी जगह पे बात करें जहां पे कैमरा हो. मे बी वो आपका सेम जेंडर हो या ऑपोजिट जेंडर हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके वहां पे कैमरा हो, बट थोड़ी सी प्रिवेसी हो इन टर्म्स ऑफ आप और वो अकेले बैठ के शांति से बात कर रहे हैं. या मे बी आप उसको बास्केटबॉल कोर्ट में, गेम्स की जगह पे, कहीं भी ऐसी जगह पे जहां कंफर्टेबल हो वहां पे बैठ के बात करें, बट इट शुड बी इनटू अ सर्विलांस दिस थिंग. नंबर 2, फोकस करना. अटेंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेक्टिव अटेंडिंग. तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, बताओ क्या दिक्कत आ रही है. ये बात बोलने के बाद किसी पर्सन को जो रिस्पेक्ट सपोर्ट फील होता है, वो ये बात बोलने पे खत्म हो जाते हैं, अच्छा बताओ क्या बात है, जल्दी जल्दी बताओ, आई एम वेरी बिजी, टेल मी. सो you are going to help when you are going to use attending skills well. Number 2, listening skills. लिसनिंग का सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि आप जब अच्छे लिसनर हैं तो आप कोशिश करिए कि आप इंटरप्ट ना करें. जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आप पैरेलली दिमाग में क्वेश्चंस इकट्ठा करने की जगह ये समझने की कोशिश करिए इसको दिक्कत कहाँ आ रही है. जब हम ये समझते हैं कि अगले को दिक्कत कहाँ पे आ रही है तो शायद हम उसको ज्यादा हेल्प कर पाते हैं. हेड नॉड्स, हर बात पे अच्छा अच्छा और आगे बताओ और बोलो, ये यूज करने की जगह यदि आप ऐसे बोले, ओके, आई अंडरस्टैंड, अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा और बताओ, अच्छा तो तुमने जो बोला उसका ये मतलब है और तुम ये कहना चाह रहे थे, एम आई राइट. यू नो, इस तरीके का अप्रोच जो है आपकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है. और जब आप इस अप्रोच को ऐसे यूज करते हैं, अच्छा जल्दी बताओ फिर क्या हुआ, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, उसके बाद तो तुमने उस टाइम पटक के तुरंत उसको क्यों नहीं वहां पे बहुत मार मारा, उसने बहुत बदमाशी की थी, उसने बहुत गलत किया था. व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग द सिचुएशन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, ना आप पे आपकी लैंग्वेज का ध्यान रहता है, ना आपके शब्दों का कोई चयन का कोई तरीका रह जाता है, और ना ही आप उस बच्चे की हेल्प कर पाते हैं. एक्चुअली आप उसको और उलझा देते हैं कि क्योंकि यू आर समवेयर एन एडल्ट, so you are in an authoritative position, and teachers has to be very mindful the terms they use in a class. Next is responding skills, like be supportive. Probe मतलब एक तरीके से इस चीज की तह तक जाने की कोशिश करना. अंडरस्टैंडिंग का सिंपल सा मतलब हुआ कि मुंह से या चेहरे से, हाव भाव से यह ना दिखाना कि हमको सब समझ में आ रहा है. अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि एक्चुअली अंडरस्टैंड करना कि दिक्कत आ कितनी रही है. नेक्स्ट, एम्पैथी. एम्पैथी सिंपली मीन्स complete acceptance and that paranubhuti which I said. Paranubhuti simply means like making sure that the child feels safe, making sure that the child feels happy, making sure that the child gets the best possible help that we can give to the child, and that's really helpful. Now, मेरा ये सेशन अटेंड करके आप काउंसलर बन जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बट आई प्रॉमिस आपको जब भी कभी कोई दिक्कत होगी तो आपको ये चीजें हेल्प करेगी समझने में कि ऐसा तो नहीं मेरे सुनने का तरीका कहीं से गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं मेरी चीजों को समझने का तरीका कहीं से गड़बड़ है. सो ऑलवेज रिमेंबर योर लिमिट्स. यू आर नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, बट यू कैन डू द फर्स्ट एड काउंसलिंग. The psychological first aid you can give by giving enough listening space to the child. And the moment you realize कि इस बच्चे को किसी हेल्प की जरूरत है, प्रॉब्लम मेरे हाथ के बियॉन्ड जा रही है, दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट सॉर्ट आउट, दिस इज समथिंग जो मेरे स्किल्स के बियॉन्ड है, इसके लिए अपने ईगो को कभी ना फंसाएं. कभी इस बात से ना परेशान हो कि अरे हम तो इसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ये मेरी टेक्निक काम क्यों नहीं कर रही है.
आपको आपकी जिंदगी में जो टेक्निक लगाने की आदत है वो अगले की जिंदगी में आइडेंटिकली काम करेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर किसी की लाइफ फैमिली सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। सो यू हैव टू हेल्प द पर्सन बाय हेल्पिंग देमसेल्व्स। तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, तुम डिसाइड करो इसमें क्या किया जा सकता है। यदि तुम ऐसा करते हो तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और यदि तुम ऐसा करते हो तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। When you will go with this approach, the person will try and learn. So आपको जब भी लगे कि आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी ट्रेंड काउंसलर की, आपका स्कूल काउंसलर है उनसे कहिए, बात करें। आपका लाइक पेरेंट्स से भी कनेक्ट है तो उनसे कहिए कि बच्चे को प्रोफेशनल काउंसलिंग दिला दें। बट दैट इज समथिंग वेर यू कैन एक्चुअली हेल्प। बट फर्स्ट हैंड काउंसलिंग में आपको सिर्फ एक अच्छा लिसनिंग स्पेस देना है। एंड लिसनिंग स्पेस देने का सिंपल सा मतलब होता है, जब हम सामने वाले पर्सन को ये रियलाइज कराते हैं दैट यू आर बीइंग हर्ड, तुमको सुना गया। सो दैट इज समथिंग, देयर टीचर्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर, that is something which you have to somewhere take care of, like which will actually help you when you will become a better person in terms of overall helping the child, right? So that is something which you have to take care of. And when it comes to basic counseling skills, that is something जो समय के साथ पॉलिश होती है और प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। तो आप यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप यदि अच्छी लिसनिंग स्किल्स की कोशिश नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में भी अफेक्ट करेगा। दिस इज नॉट प्रोफेशनली, दिस विल नॉट ओनली प्रोफेशनली हेल्प यू, दिस इज समवेयर गोइंग टू हेल्प यू पर्सनली एज वेल। घर की कई सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जब आप किसी पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं, अपने घर के किसी पर्सन की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उस पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो आपको अप्रोच है, if it is not like a counselor, if it is not like a balanced person, it will affect the complete relationship with the person. So that is something which you have to be very careful of. Of course, I'll be in touch with the Sahodaya group and I will try कि मैं इसके आगे का और एडवांस मेथड आप लोगों से इन फ्यूचर डिस्कस करूं। पॉसिबली अगला सेशन में कोशिश करूंगा कि वो एरियाज जो छूट गए, जिन एरियाज को हम नहीं कवर कर पाए, उन एरियाज को आई वुड लाइक टू कवर in the future session, so that it can help you to better understand everything, and it can help you to somewhere sort out the issues which you are facing. So that is something which is my intention in the next session, and it is going to be of course a wonderful session when we are going to meet next time. But I promise I'm going to talk about a lot of another skills which you need as a teacher in polishing your listening skills, which you need as a teacher in terms of your better relationships with students, and of course, to maintain a better personal and professional balance. So that is something which I wanted to add here. And thank you so much for being a very patientful listener. Thank you so much for being a very honest audience. Thank you so much, everyone. Thank you and Jai Hind.